Okay, friends, we discussed just in our last lecture the rules of incidence of tax. Okay, in which incidence, according to which status the assessee has to pay tax. Okay, there are, as we know, there are three different residential status. So here, according to that rules, now we are calculating the sum. Here the one example is given. Okay, Mr. Y's income, various income is given, and we have to check his incidence of tax if he is a resident or ordinary resident or not resident. Okay, we have to check all these three status of Mr. Y. If Mr. Y is ordinary resident, then all these income are taxable or not. If Mr. Y is resident in India, then all these income are taxable or not. If Mr. Y is non-resident in India, then all these income are taxable or not. That we supposed to check in this our example. Okay. Here first income is given salary. Salary is total rupees 7,20,000. Okay. Now salary is he is earning in India, arising in India, he is using that income in India. Okay. So first of all, the first income of Mr. Y is income is salary. As we know that salary income is taxable for all. He received income in India. So in all these three categories, the total amount would be taxable. 7,20,000 taxable if he is ordinary resident. 7,20,000 is taxable if he is only resident, and 7,20,000 is taxable if he is not resident in India. Okay, so salary amount here is according to rule taxable in all these three categories. Clear? Now second thing, interest on debenture of A Limited. Okay, debenture income is taxable. Dividend income is tax free if Indian company is giving the dividend. Here we discuss the debenture income, interest on debenture. Okay, so interest on debenture of A Limited, if he received in India, okay, earning in India, so in all categories he has to pay tax. So second thing, interest of dividend of A Limited. So again, dividend is also taxable in all these three categories. If he is ordinary resident, he has to pay tax on 48,000. Resident for also taxable 48,000, and for non-resident case he has to pay 48,000. In all three categories he has to pay tax. Third one is income received in Bangladesh. See, Bangladesh brought to India. Okay, इंडिया में वो क्या किया है, वो टैक्स लाया है, बराबर है. तो इनकम हुई है, बिजनेस के नहीं बिजनेस ऐसा कुछ क्लियर कहा नहीं है, तो उसको हम अदर सोर्स मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं? अदर सोर्स. अदर सोर्स की इनकम उसकी बांग्लादेश में हुई है, आउटसाइड ऑफ इंडिया. ये रहा आउटसाइड ऑफ इंडिया, और वो इंडिया में लाता है. वो इंडिया में क्या करता है? इनकम लाता है. कोई भी इनकम हुई है, बिजनेस की नहीं है, अदर सोर्स की इनकम है, आउटसाइड ऑफ इंडिया हुई है, बांग्लादेश में हुई है, और वो इंडिया में लाता है. तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होता है, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के लिए वो टैक्सेबल होता नहीं है. टोटल अमाउंट कितनी है? 8 लाख. क्या है? इनकम रिसीव्ड इन बांग्लादेश. ओके, इनकम ऑफ बांग्लादेश. ओके, रिसीव्ड इन इंडिया. रिसीव्ड इन इंडिया. इंडिया में वो लाता है, प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में लाता है. कितनी अमाउंट है? 8 लाख. तो 8 लाख यहाँ पर अपने जैसे देखा इस रूल के हिसाब से सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए 8 लाख टैक्सेबल होगा, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए वो टैक्सेबल होगा नहीं. दोनों, अगर वो रेसिडेंट है तो वो उसको टैक्स नहीं भरना है इस इनकम पर. अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो भी इस इनकम पर वो टैक्स भरेगा नहीं. क्लियर? नाउ फोर्थ वन, बिजनेस इनकम फ्रॉम बर्मा, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. अमाउंट कितनी है? 9 लाख. बराबर. तो 9 लाख रुपए वो कमा रहा है. बिजनेस, ये रहा बिजनेस. कहां पर है बिजनेस उसका? बर्मा. बर्मा मतलब दूसरी कंट्री हुई, इंडिया के बाहर की कंट्री हुई. तो बाहर के देश में उसका जो बिजनेस है, उसकी इनकम जनरेट हुई है, वो इंडिया में लाया है, और बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया में से हो रहा है. तो ये केस एप्लीकेबल होगा. इस रूल के हिसाब से क्या होगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर वो होगा तो टैक्स भरेगा, अगर वो रेसिडेंट होगा तो भी टैक्स भरेगा, पर अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो टैक्स भरेगा नहीं. क्लियर? तो ये रूल हमें याद रखना है. बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम बर्मा, बर्मा बराबर इंडियन कंट्रोल, बराबर
बिजनेस कहाँ से कंट्रोल होता है, इंडिया से कंट्रोल होता है। अमाउंट कितनी है, 9 लाख। तो इस रूल के हिसाब से ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर वो बंदा है तो भी टैक्स पे करेगा, रेसिडेंट है तो भी वो टैक्स पे करेगा, पर नॉन रेसिडेंट है तो वो टैक्स भरेगा नहीं। क्लियर। फिफ्थ इनकम देखते हैं, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। मैंने जैसे अभी कहा, इंडियन कंपनी अगर डिविडेंड देती है, बराबर है, तो इंडिया में वो इनकम क्या है, टैक्स फ्री है फॉर ऑल सिटीजन। ओके, सो डिविडेंड ऑफ इंडियन कंपनी, बराबर, तो सबके लिए वो क्या है, टैक्स फ्री है। जनरल रूल है, डिविडेंड और एग्रीकल्चर इनकम, बराबर, इंडिया में मिलता है, इंडियन कंपनी का है, तो वो क्या होता है, टैक्स फ्री। नेक्स्ट रूल है एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, बराबर, खेती की इनकम। ऑन इन बड़ोदरा, बड़ोदरा सिटी में उसकी लैंड है, उसको इनकम मिली है, कितनी मिली है, 2 लाख। तो बड़ोदरा सिटी मतलब वो इंडिया में ही खेती करता है, इंडिया की ही खेती की इनकम है, तो इंडिया में वो क्या होगा, टैक्स फ्री। अगर फॉरेन की होती तो वो टैक्सेबल होती। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम, बड़ोदरा सिटी लैंड, बड़ोदरा सिटी की लैंड है, तो यहाँ पर तीनों में क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है इनकम ऑफ श्रीलंकन बिजनेस, बराबर, श्रीलंका में बिजनेस करता था, उसकी इनकम, बिजनेस की इनकम किस साल की है, 2016-17 साल की। कौन से साल की, 16-17 साल की। एंड ब्रॉट टू इंडिया इन अ प्रीवियस ईयर, 16-17 में श्रीलंका का बिजनेस के इनकम वो कमाया था, जो भी था उसका पैसा वो ब्रॉट टू इंडिया, इंडिया में लाया है 1 लाख पिछले साल। इनकम कब है, मैंने पहले ही कहा था कि हमें सभी केस कौन से ध्यान लेने हैं, प्रीवियस ईयर के ध्यान में लेने हैं। ये तो इनकम प्रीवियस ईयर के पहले 2016-17 की है, तो जिस साल उसने कमाया होगा उसी साल उसने उस पे टैक्स पे किया होगा, जो भी रूल के हिसाब से है। ये प्रीवियस ईयर में लाया है, तो लास्ट रूल आता है कि भाई कोई भी इनकम अप्रूव और अराइव हुई आउटसाइड ऑफ इंडिया, बराबर, जैसे श्रीलंका में हुई, बराबर है, प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के पहले हुई है, तो वो अगर इंडिया में लाता है, प्रीवियस ईयर में इंडिया में रेमिट करता है, लाता है, तो तीनों केसेस के लिए वो क्या हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल। क्यों नॉट टैक्सेबल हो जाएगा, जिस साल कमाया था उसी साल उसको वो इनकम दिखानी है, और उस पर जो टैक्सेबिलिटी आती है वो एप्लीकेबल करनी है। तो यहाँ पर श्रीलंकन बिजनेस इनकम प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर 2016-17, बराबर, तीनों केसों के लिए क्या होगा, नॉट टैक्सेबल। क्लियर। तो इसी रूल के हिसाब से ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि कौन सी इनकम रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है, नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है। सभी का टोटल कर दो तो उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी कि इंडिया में कितना टैक्स लिया जाएगा, बराबर, इसका टोटल होगा 24,68,000, बराबर, इसमें एक इनकम है 8 लाख की नहीं है, तो इसका टोटल होगा 16,68,000, और इसमें तो सिर्फ दो ही इनकम है, 7,20,000 और 48,000, उसका टोटल होगा 7,68,000। क्लियर। तो अगर मिस्टर वाई इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, मान लो, बराबर, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हम कैसे चेक करेंगे, पहले तो वो रेसिडेंट होना चाहिए, उसके बाद 10 सालों में से 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए, और पिछले 7 सालों में कितने दिन, 730 दिन इंडिया में होना चाहिए, तब जाके वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनता है। अगर मिस्टर वाई ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो 24,68,000 पर टैक्स पे करेगा। अगर मिस्टर वाई सिर्फ रेसिडेंट है, सिर्फ रेसिडेंट मतलब प्रीवियस ईयर में 182 दिन या 60 दिन प्रीवियस ईयर में, और उसके 4 साल पहले कितने होने चाहिए, 365 दिन, तो कितने दिन भरेगा, कितना टैक्स भरेगा, कितने रुपए पर टैक्स भरेगा, 16,68,000 पे टैक्स पे करेगा। और अगर वो नॉन रेसिडेंट है, बराबर है, मतलब वो ना तो 182 दिन रहता है, ना ही 60 डेज रहता है, तो ऐसे केसों में वो 7,20,000 और 48,000 पर, 7,68,000 पर ही टैक्स पे करेगा, बराबर। तो उस रूल से ये चीज कनेक्ट है, बराबर है, पर मेन रूल ये याद रखने हैं, बराबर। बार बार मैं कह रहा हूं कि इंडिया में इनकम आई तो सबके लिए टैक्सेबल, इंडिया में कमाई सबके लिए टैक्सेबल, इंडिया के बाहर कमाई और इंडिया में लाए पर बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा था तो लोग के लिए टैक्सेबल, इसके लिए नहीं है। अगर कोई भी सोर्स से इनकम आई है, इंडिया के बाहर कमाई है और इंडिया में लाए हैं, तो सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल, इन दोनों के लिए नॉट टैक्सेबल। और अगर प्रीवियस ईयर की इनकम है ही नहीं, प्रीवियस ईयर के पहले के सालों की इनकम है और इंडिया में लाए हैं, तो फिर तीनों के लिए क्या हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल, बराबर। तो ये रूल हमें याद रखने हैं। थैंक यू।